Hello and welcome back, friends, to another episode of the Midas Touch with Vikas Joshi. Friends, here we are moving from the restricted mindset to the growth mindset. We are moving from financial accumulation to financial stability. And in the process, we are also discussing many of the financial terms in detail so that we understand the basics and we are able to educate ourselves and then invest. That will save our time and also the money. Here we are in the process of money abundance. You should be able to enjoy your money for the lifelong. And the process is time tested, that is lifelong, that is learning process. So today we'll be dealing with stock market basics for beginners. स्टॉक मार्केट नॉर्मली भी इस टर्म से ही सब लोग डरते हैं। नहीं उसमें पैसा चला जाता है, अभी तो मार्केट गिर गया, पैसा डूब गया कई लोगों का, है ना, ये तो होता ही है। बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दोस। आजकल तो आप जब ये मैच देखते हो तब भी ये बार बार आता है, म्यूचुअल फंड सही है ना, दे आर एडवर्टाइजिंग ऑल दिस थिंग्स। नाउ these are the steps to initiate your investment process irrespective of the age. Don't worry about the age. So stock market, some fear it, some admire it, and some master it. जो डरते हैं वो दूर ही रहते हैं। जो सोचते हैं अरे वाह पैसा मिल गया, एडमिरेशन किसके लिए है, पैसा मिला, मैंने थोड़ा डाला बहुत मिला, ये जो है ना बहुत, ये एडमिरेशन के लिए है। बट सम मास्टर इट, दैट इज द राइट वे। यू हैव टू मास्टर द प्रोसेसेस एंड देन इन्वेस्ट। सो डोंट प्ले द गेम कि मुझे इसने बोला उसने बोला, नहीं, you have to first understand that is what we are trying to help you out. So what truly separates successful investors from beginners is the knowledge and the right mindset. We are hammering on the right things. That is, the phrase is hammer the nail on the head. So that is what I am trying to do, friends. I am trying to share the knowledge and change the mindset. That should be the first step. फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। एक बार मन तैयार हो गया कि नहीं हमें करना है, अब प्रोसेस भी हमें करनी पड़ेगी। सो वेन एवर देर इज अ क्राइसिस, अब क्या करूं, मुझे ऐसा करना कि नहीं, यू हैव टू फॉर्म अ प्रोसेस, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो कैसे करोगे। सो वेन एवर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of any steps or any plan, the basic is the knowledge, and that is what we are doing, friends. So in today's episode of the Midas Touch, we will break down stock market basics. थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड करते क्या है, डर किस बात का है। फॉर द बिगिनर्स तो वो हम ऐसा ही पकड़ के चल रहे दैट एवरीबडी इज अ बिगिनर, सो टेक इट इन दैट सेंस ओनली। What is it, how it works, and how you can start investing the right way? That is what we will be addressing in today's episode. So what is stock market? So imagine a giant marketplace where companies sell prices or pieces of their ownership and investors buy them to grow their wealth. वही तो कर रहे हैं हम लोग। That is what stock market is. अगर सब्जी मंडी में जाते हैं तो बहुत सारे सब्जी वाले दिखते हैं, लेकिन हर एक की सब्जी सेल हो रही है। So in stock market, the companies are offering their ownership. When you are buying a share, that means you are becoming the part owner of the value of which you have bought the shares of. That is what exactly the stock market is. So it is a platform where companies raise money by selling shares because they get the amount for their development, and if they grow, make profits, then you are also growing simultaneously. So the investors buy shares to earn profits through price appreciation or dividends. डिविडेंड आ रहा है मतलब पैसा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कंपनी बढ़ रही है, मतलब आपका पैसा भी बढ़ रहा है, मतलब आपके पैसे से पैसा बन रहा है। That is what our basics is, friends. Money should generate money whether you are at home or you are sleeping or whatever the case may be, but your money should generate money for you. So hence I have been stating with simple ways. The most simple is don't keep cash at home. Keep it in the bank. The bank is giving you some interest on it.
योर मनी इज जनरेटिंग मनी। 1 रुपए तो 1 रुपए, लेकिन बन तो रहा है। घर में रखोगे तो 1 रुपए का 2 रुपए नहीं बनने वाला, बिकॉज उससे इंटरेस्ट नहीं आने वाला। दैट इज हाउ वी प्रोसीड फर्दर फ्रेंड्स। सो इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स टू अर्न प्रॉफिट्स। नेचुरल है, मैं पैसा क्यों डालूंगा? क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, पैसे से पैसा बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा? तो प्राइस एप्रिसिएशन, द शेयर मार्केट, जिस जिस भाव पे आपने वो शेयर खरीदा, अगर उसका भाव बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपका पैसा बढ़ रहा है। अगर वो आप कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, मतलब उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सो इट इज अर्निंग मोर एंड इट इज शेयरिंग द प्रॉफिट विथ यू। पैसे से पैसा बन चुका है। सो इट ऑपरेट्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएससी, बीएससी एटसेट्रा, मतलब न्यूयॉर्क का बोले नैस्डैक वगैरह वगैरह। दीज आर द exchanges where these changes take place. So friends, it is a platform for your development. तो कैसे? Now we proceed further. When you buy a stock of a company like टाटा, बोलिए टाटा का अगर आपने खरीदा, या रिलायंस या इन्फोसिस, sound companies, you become a partial owner of that company. That is what you have to understand. स्टॉक ले लिया मतलब आपने उस कंपनी के पार्शियल ओनर आप बन चुके हो। Now, how does the stock market work? Think of a stock market as auction where buyers and sellers negotiate the prices. ऐसा मतलब you buy a certain stock if you are totally aware of the financial situations of that particular company, then you are predicting that this would be the share price and I would buy at this price. Nowadays there are many advisors and advisories also who state many of the things. ये शेयर नीचे जाने वाला है, बाहर ऊपर जाने वाला है। I would say don't go by them. First of all, you understand what you are doing because it's your money. किसका पैसा? तुम्हारा। कौन डिसीजन लेगा? आप खुद। अगर किसी और के कहने से कर रहे हो तो उसका तो कुछ नहीं जाने वाला। अगर डूब जाओगे तो आपका पैसा जाने वाला है। बेटर सुनो उसकी, सब कुछ सुन लो, लेकिन एनालिसिस खुद ने करना है। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल नेगोशिएशन। मतलब आप कंपनी के साथ नेगोशिएट नहीं करो, बट द प्राइसेस गो अप एंड डाउन एंड नाउ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, सो यू आर रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, so you are ready to pay the price to the company if that share comes to that price. Correct? That is what I mean to say by negotiation. So the stock market is not a gamble. वो gamble नहीं है जैसे बाकी लोग तकदीर है, अभी क्या जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्टडी करके करोगे तो 100% आपका सक्सेस है, 100% है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है लेकिन है। सो इट इज अ वेल्थ बिल्डिंग टूल when understood correctly. Hence मैंने कहा कि हाँ सक्सेस है 100%. If you understand it correctly, it is a wealth building tool. Now you have to generate money. अब अगर आप सिर्फ नौकरी कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू जनरेट मनी एज अ पासिव इनकम कि अरे इससे काम, सिर्फ एक ही से मैं नहीं अटका रहूंगा, मैं और कहीं से भी इनकम जनरेट करता हूँ। दैट इज द वे वी बिल्ड अवर वेल्थ। So the stock prices change based on supply and demand. मतलब ज्यादा डिमांड है तो भाव बढ़ेगा, ज्यादा सप्लाई है तो भाव कम होने वाला है। If more people want to buy a stock, the price goes up. If the more people sell, then the price goes down. That is what we understand from the fluctuation of the price. And there we decide whether we have to buy or we have to sell. Market sentiment, company performance and economic conditions affect these prices. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, but I have summed up in these three. ये इफेक्ट करता है। So the market sentiments, they play the game for the prices of the companies. So the stock prices reflect investors' confidence and company's performance. वो जो आप देख क्या रहे हो, कंपनी का परफॉर्मेंस देख रहे हो। सो तुम्हारा सेंटिमेंट क्या है? बाय करनी चाहिए, इसमें पैसा डालू कि नहीं डालू? हाँ, ये सवाल है आपका। परफॉर्मेंस किसका देखोगे? कंपनी का। सो दैट इज हाउ वी स्टार्ट लर्निंग द प्रोसेस। पहले कंपनी देखो क्या है उसका। आई विल बी डिटेलिंग व्हाट वी हैव टू लुक इनटू द कंपनीज when we wish to understand their financials. I would not be going into the details as fundamental and technical analysis.
because that is a too long a subject and cannot be told in one or two series. तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वैसे लोग बताने वाले कि फंडामेंटल का मैं बता ये करता हूँ. We go by step, then I tell you simple tips where you understand what you have to see and what are its effect. And we will be discussing in the next videos also. Today we will be discussing the basics for the stock market. So, types of stocks. क्या टाइप है स्टॉक के? स्टॉक मार्केट में आप जाते हो क्या लेना चाहिए? What are the type of stocks? Oh, where the beginner should start with the blue chip stocks, safe and reliable. The large, well-established companies with stable growth, blue chip. मतलब उसका स्टेबल है, बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत सालों से है, प्रॉफिट दे रहा है, कोई प्रॉब्लमेटिक केसेस नहीं है, बंद होने के चांसेस नहीं है. What are we looking at? Protection of our money, investments. So example would be Reliance, HDFC, TCS, Tata's. ये जो बड़े घराने हैं, इनकी जो कंपनियां हैं, तो ये सालों से चल रही है. ब्लू चिप कंपनी, सेफ, रिलायबल, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, डूबेगा नहीं. So the best for the beginners who want to the stability and with moderate returns. अब ज्यादा रिटर्न इसमें तुरंत मुझे एकदम अमीर बनना है, ये सोच के मत आइए, ऐसा नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए. The fast you go up, the fast you come down. That is a normal process or the rule of nature. Mid cap and small cap stocks, high risk, high rewards. Risk high है, rewards भी high है. तुरंत आप डालो, पैसा मिल गया, ओके, बट रिस्क हाई, नहीं होगा तो डूब गया. सो मिड कैप, ग्रोइंग कंपनी विद पोटेंशियल, जैसे अभी ग्रो हो रही है, पोटेंशियल है ग्रो होने की, जैसे एमआरएफ है, टाटा है. स्मॉल कैप, इमर्जिंग कंपनी विद हाई रिस्क, नई नई कंपनियां जो नए ट्रेंड सेट कर रही है, दीज आर मिड कैप फंड्स. सो आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू बेयर हाई रिस्क. डिविडेंड स्टॉक, अर्न पैसिव इनकम, पैसा मिल रहा है उसमें से. कंपनीज दैट शेयर प्रॉफिट विद इन्वेस्टर्स, प्रॉफिट बना तो उसका डिविडेंड भी इन्वेस्टर को तुरंत दे दिया. दीज कंपनीज आर गिविंग यू बैक योर मनी. सो लाइक आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, ये कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है. सो ग्रेट फॉर हु आर सीकिंग रेगुलर इनकम, जिसको चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई दीज कंपनीज. Now, how to start investing? Open a demat account and trading account. That is a basic necessity, because nowadays physical bonds are not available. Physical shares are not allowed. You have to have the demat form only. That is in electronic form only. So you have to require and buy and sell stocks online. So you have to choose the broker. जैसे old broker, जैसे वो शेर खान, Motilal Oswal. See, I'm not recommending. We are talking in this video. We are talking only for the educative purpose. So please do not think that I'm endorsing something or I'm embossing something. No, not at all. I'm giving you the examples. So you have to choose the reliable which you feel. What you will look at. Charges, simple. बाबा ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितनी देर ये चलने वाला है. कहीं छोटा मोटा आदमी जैसे आफ्टर कोविड मेनी ऑफ द पीपल्स दे टुक टू दिस टाइप ऑफ डिफ्रॉडिंग केसेस. उन्होंने लोगों से पैसा जमा किया और बोले हम हमको रिटर्न्स देंगे, डबल कर देंगे पैसा, क्या क्या बोले. द पीपल हु आर ऑलरेडी लॉस्ट इमोशनली आल्सो एंड फाइनेंशियली आल्सो ड्यूरिंग दैट कोविड वेव, दे वांटेड द बक्स, दे वांटेड द मनी. उन्होंने बिलीव कर लिया. फ्रेंड्स, वेरी रॉन्ग मेथड. 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल, उससे ज्यादा नहीं चले ये लोग. उन जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनको भी डूब गया. सो डोंट डू दैट. देयर इज नथिंग लाइक क्विक मनी, नहीं होता है. अंडरस्टैंड क्या है. सो यू हैव टू हैव द रिलायबल ब्रोकर जो एस्टैब्लिश्ड है, जो चार्जेस कितना ले रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर. नॉट लाइक दिस, मैं डबल करके दूंगा, मेरे को 1% दो, 2%, व्हाटएवर दे आर कॉलिंग फॉर, पीपल आर गिविंग, दे गिव. ये घटी घटना है, पेपर न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कई बार. फ्रॉडुलेंट लोग थे. अब पुलिस
उनके पीछे है, उनका सब इंक्वायरी चल रहा है, बट वेयर इज द अमाउंट हैज गॉन, इरोडेड ना। जो स्टेबल ही नहीं थे तो कहां से पैसा डबल करेंगे? अरे जो बैंक भी बेसिक पैसा इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, ये आदमी बोल रहा है मैं डबल करके दे दूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। When the market is down, the people are not ready to double up their money. These people, they are luring they are luring some common man into their net of fraud, है ना, गलत बोल के कि मैं तुम्हारा पैसा डबल करके दूंगा। ये आदमी भी चल दिया, हाँ हाँ चलो चलो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मेरा आदमी है, मेरा विश्वास है। नो फ्रेंड्स, पैसा किसका? आपका। जिंदगी किसकी? आपकी। चिंता किसने करनी? आपने। जिन्होंने नहीं की वो आज पछता रहे हैं कि अरे हमने गलत डिसीजन ले लिया। सो फ्रेंड्स, डोंट रिलाई ऑन समबडी, गो बाय द बेसिक्स। स्टेबल क्या है, चार्जेस कितने हैं, ये सारा सोच के आपने अकाउंट ओपन करना है। देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टिल फ्रॉडिंग कॉमन मैन। Beware of such people. Even RBI and all these statutory organizations are giving advertisement. Don't fall prey to such advertisements. मतलब वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है उसके आप प्रे मत करें। इन्होंने तो वैसे यूट्यूब में भी कंस्ट्रेंट कर दिया कि यू कैन नॉट जस्ट एडवाइज पीपल। लॉ बन रहे हैं लेकिन घटनाएं भी घट रही है। सो प्लीज डोंट फॉल प्रे टू दीज थिंग्स। सो रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट, सिंपल। अब रिसर्च कैसे करोगे? यू हैव टू स्टडी द कंपनीज फंडामेंटल्स। कंपनी क्या है, वो आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने कितने साल दिया है, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट इज द पी रेशियो। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस टर्म्स इन द कमिंग वीडियोस। व्हाट आर द रेवेन्यू, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या है उनके हाथ में वर्क ऑर्डर्स क्या है, व्हाट इज दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर। अवॉइड इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन रूमर्स, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। रूमर्स पे बिलीव करके मत कीजिए। देयर आर मेनी नाउअडेज ना, आजकल तो व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, तुम इसमें इन्वेस्ट करो, तुमको इतना पैसा मिलेगा, क्या और क्या क्या। डोंट बिलीव देम अनलेस अंटिल यू पर्सनली स्टडी दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन डेटा, नॉट गेस वर्क। ना कहीं बोलते हैं कल तो मार्केट बढ़ने वाला है, अरे किसी को पता नहीं, इसको पता है, कैसे पता? पता नहीं। Don't go by those things. Remember one basic question which I am asking in every or other many of my videos. जिंदगी किसकी? आपकी। पैसा किसका? आपका। चिंता किसने करनी है? आपने। So first and foremost, it's your money. Don't just give away to the rumors. They will, मतलब वो आपको फ्रॉड करके आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। Don't do that. सो स्टार्ट स्मॉल एंड डाइवर्सिफाई। शुरुआत एकदम छोटे से कीजिए। जैसे इन्वेस्टमेंट करते तो आज भी मैंने कहा कि वो क्रिकेट के टीवी चैनल्स पे भी आ जाता है, म्यूचुअल फंड सही है। SIP, स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑन मंथली बेसिस आप करो, लेकिन उसमें भी आपको कंपनी देखनी है। यू हैव टू स्टडी द क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट कंपनी। हाउ? वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। सो बिगिन विथ इंडेक्स फंड्स, वो भी एक है। सो इंडेक्स फंड्स में करोगे फॉर सेफर एक्सपोजर, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अगेंस्ट द मार्केट वोलेटिलिटी। डाइवर्सिफाई करोगे डिफरेंट एरियाज में तो आपका एवरेज हमेशा बना रहेगा। यू विल नॉट बी एट ग्रेटर लॉसेस, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन होता है तो नोबडी कैन गारंटी। जो मैंने अभी कहा कि फ्रॉडुलेंट लोग गारंटी देते हैं मैं तुमको डबल करके दूंगा, कहां से डबल करेगा? मार्केट ही डाउन हो गया। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है आपका फंड तो आपका एवरेज निकल जाता है। हाउ? अगेन आई स्टेट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर वीडियोस टू कम। सो थिंक इन लॉन्ग टर्म, डोंट चेज क्विक प्रॉफिट्स, तात्काल सेवाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने 100 रुपए दे, मुझे 500 रुपए मिलना चाहिए। वो जो कोई बोल रहा है ना, उसे अगर आप काउंटर करोगे, हाउ, कैसे करोगे? और उसको बताओगे मार्केट डाउन है, इंटरेस्ट रेट भी इतना नहीं है, जहां बैंक वाले गो बाय द बेसिक्स। यू सी इवन द बैंक्स आर आल्सो नॉट एबल टू गिव यू द डबल द प्रॉफिट इन 1 ईयर। एक साल में डबल नहीं हो रहा है। और ये आदमी बोल रहा है मैं तुम्हारा
3-4 महीनों में डबल करके दूंगा, देयर इज सम प्रॉब्लम. दैट इज हाउ यू हैव टू गो बाय. सो यू हैव टू बी इंक्विजिटिव सिंस इट्स योर मनी, इट्स योर लाइफ. सो थिंक लॉन्ग टर्म. क्विक टर्म्स में हमको कुछ नहीं चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा और डाइवर्सिफाई करो. हर महीने थोड़ा. आपका पे जो आ रहा है उसमें से अगर आप 10% भी अपने खुद के लिए रखते हो, तो सम अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन मंथली बेसिस, SIPs. अगर कंपनी स्टडी करके आप कर रहे हो तो धीरे धीरे बढ़ते जाओ, तुरंत सब रकम मत डालो. मैं तो बोलता हूं छोटी रकम भी मत डालो जब तक कि आप खुद कंफर्म नहीं हो. सो यू हैव टू explore everything. You have to understand the fundamentals of the company. How? Again, we'll be discussing. But on this today, we'll be discussing how the stock market works, how we can proceed further. So small investments is the first step. So what you should avoid, investing without research. सो ब्लाइंडली फॉलोइंग समबडीज टिप्स, है ना. कोई तो बोलता है इसमें इन्वेस्ट करो, मैं तुमको डबल करके देता हूं, मैं तुमको ट्रिपल करके दूंगा, कहीं पैसा नहीं जाएगा, अपना ही बंदा है, क्या क्या एश्योरेंसेस देते रहते. डोंट फॉल प्रे टू सच थिंग्स. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज शुड नॉट बी डन. सो क्विक प्रॉफिट्स ऑफन लीड टू क्विक लॉसेस. मैंने कहा ना, जितने जल्दी ऊपर चढ़ोगे इतने जल्दी नीचे आ जाओगे. ये निसर्ग का नियम है. सो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अंडरस्टैंड, इन्वेस्ट, एंड लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट बनेगा. बिकॉज वी आर कंसर्न विथ आवर इनकम, वी आर कंसर्न विथ दैट द मनी शुड जनरेट मनी. वी डोंट वांट टू गिव अवे आवर मनी टू द फ्रॉडुलेंट पीपल, है ना. इसलिए इमोशनल इन्वेस्टिंग, फियर एंड ग्रीड ड्राइव पुअर डिसीजंस. अरे बाप रे, अभी कल मार्केट नीचे जाने वाला, इसने बोला उसने बोला, पैसा निकाल दिया. अरे क्यों? When you have studied it, believe in that rather than believe in someone else. So quick money, there is no such thing. Go steadily, step by step, small. Diversification is the base. So if you ignore diversification, you are taking a big risk. Because अमाउंट आपकी है. अगर आपने सभी एक लमसम, मुझे बेसिक अपना स्कूल में से हम पढ़ते आ रहे हैं, नेवर कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट. सेम रूल, यू हैव टू डाइवर्सिफाई. सो दिस इज हाउ वी बिगिन विद द स्टॉक मार्केट्स. सो लेट अस सम अप. लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट. इन्वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली साउंड कंपनीज. स्टे डाइवर्सिफाइड. Think in long term. Control your emotions. Don't go by emotion. मेरे दिल ने कहा, मैंने कर दिया. अरे मत करो ऐसे. पैसा है वो, दिल ने कहा नहीं. दिमाग और दिल सेम पेज पे होना चाहिए, तभी इन्वेस्ट करना फ्रेंड्स. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर. सो व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू शेयर मार्केट? When I've told you the basic of all these things, analyze this question. Please comment if you have got anything to say on this. If you want anything, you can always ask me. I will be there to make a video on that. So the stock market is a powerful tool for wealth creation, but only for those who go by knowledge, patience, and a strategy for. So friends, invest with knowledge, with patience, and a planned strategy, long term. Diversification should be the base. Emotional decisions should be avoided, should not be taken. Sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Midas Touch, where we will be discussing in detail how we proceed further to take up the company and what are the factors that we should see into the company's financials when we want to invest somewhere. Again I repeat, this series is for knowledge purpose. मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेसिक्स बताता जाऊं. I am not at all endorsing, embossing, or I'm advising anything. This is for knowledge purpose, please. So meet again in the another episode. If you have loved this episode, please like, share, and subscribe. It motivates me to create such videos. We meet again. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity.
Do enjoy.